Sir, am I able to share the? Okay. Sir, my voice is audible, na? Okay. Okay. So today my topic is Upanishad, and it's morning, so it's nice way to start the. Some people feel that it is a very tough topic, but I don't feel it is a very tough, but it is a very interesting topic, Upanishad, because it deals with knowledge, with Gyan. And this morning is very good to start with the gaining some knowledge. So namaste everyone and welcome you all. I'm Sushma Maurya. Okay. So we are starting with today's topic Upanishad. So you all know about the Upanishad. It is the main source of the Upanishad is from the Veda. ये उपनिषद जो है वो वेद से आया है एंड वेद इज द ओल्डेस्ट क्रिएशन ऑफ दिस अवर वर्ल्ड यू कैन से एंड देयर आर 4 वेदास और 4 वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद एंड अथर्ववेद and these 4 vedas each veda has the 4 parts okay samhita brahman aranyaka and upanishad like suppose rigveda is there then rigveda has 4 parts samhita brahman aranyaka and upanishad so each veda has the last part is known as the upanishad or vedanta so samhita part the first part of veda is contains the hymns and mantras and which is in the praising form and it praises about the deity जितने देवता हैं उनको प्रेज करना उनको किस तरह से प्रेज करना है उसके लिए मंत्र क्या है छंद क्या है that all has covered in the samhita part. Now the second portion of the Veda is Brahmad part. In the Brahmad part, it is the same thing which is given in the Samhita, how to apply that mantra or hymns or chanda to for your desire. Okay, to complete your desire or to complete that rituals or that prayer, how to apply that, all that is given in the Brahman part. And third part of each Veda is Aranyak part. Aranya means the forest. So Aranyak part speaks about what are the rituals are given in Samhita and Brahman part, how to apply that when you go in the Vanaprastha ashram. And the Upanishad part, last part of the Veda is Upanishad. So Upanishad is the last part of Veda, that is why it is called Vedanta also. And Upanishad is totally the philosophical discussion about the getting the knowledge to get the liberation. Okay, and usually all the Vedas, all the 4 Vedas, okay, and each Veda is divided into mostly 2 sections. If we divide the Veda in a broad format, then it is divided into 2 sections. One is Karma Kanda and another part is Jnana Kanda. Okay, so when we take Samhita, Brahman and Aranyaka, because these 3 are mainly about the rituals, क्या आपको rituals perform करने हैं to get your to fulfill your desire. So that is why it is also known as the Karma Kand, क्योंकि उसमें कर्म part ज़्यादा है, rituals part ज़्यादा है. And second part is Jnana Kanda, or Jnana Kanda is total about the knowledge, about how you can get attained Brahma or how you will get the liberation. That all part is given in the Upanishad and it is known as Jnana Kanda also. Now, this 4 division of the Veda, Samhita, Brahman and Aranyaka Upanishad, how it is related with our life. Okay, how it is related with our 4 ashram. So if you suppose like a human life is, if we suppose it is a 90 or 100 years, अगर हम मानते हैं कि जो human की life है वो 90 या 100 साल है, तो उसमें जो सबसे पहला part है life का, like birth से लेके till 24 और 25 age, है ना, जिसमें हम student की life जीते हैं, and it is known as ब्रह्मचर्य आश्रम. And इन द ब्रह्मचर्य आश्रम, है ना, स्टूडेंट जो है वो गुरु के आश्रम में जाके वहां पे स्टडी करते हैं, है ना, ही स्टडीज अंडर अ गुरु एंड अंडरस्टैंड हाउ टू लीड अ धार्मिक लाइफ, कैसे जीते हैं धार्मिक लाइफ, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में सीखते हैं. एंड इन दिस आश्रम दे फॉलो द संहिता पार्ट.
Okay, they chant and they recite the hymns and chanda which is given in the Samhita, and they follow Samhita part of the Veda. Now, second, when you go to the Grihastha ashram, like around the age of 24 or 25, around to 50 years, so here, like he marries और वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, and then he raises family, he educates his children, and then he lives a social life. So to live in a social life, how to live your social life, this all part or what the rituals you should perform, all the things given in the Brahmad part. So he is following the Brahmad part of the Veda in the Grihastha ashram. Now third part, like when the ages of like 50 से 75 के बीच में जब वो पहुंचता है एक एज में जहाँ पे उसके जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं and all the children are settled down, and now he thinks कि अब मुझे रिटायर्ड हो जाना चाहिए, और रिटायर्ड होने के लिए with his wife वो वन की तरफ जाते हैं. So it is called वानप्रस्थ. अब वन में जाने के बाद what they will do, like what they should perform, क्योंकि वन के वहां पर भी रहने के कुछ नियम हैं. ओके और वहां रह के भी आपको कुछ ऐसे रिचुअल्स फॉलो करने हैं विच इज गिवन बाय द वेदा ओनली, एंड ऑल द रिचुअल्स और परफॉर्मेंस विच दे आर परफॉर्मिंग इन द aranya, it is given in the Aranyak part of the Veda. And the last part, when they like after spending some years, finally when his or her spouse passes away, दोनों में से कोई एक है ना गुजर जाता है, तो उसके बाद जो एक पार्टनर होता है ना, इट टेक्स अप संन्यास, वो संन्यास ले लेता है, एंड देन ही रीड अबाउट द उपनिषद, और वो ज्ञान कांड की तरफ या उपनिषद या उसको सीखने की ज्ञान कैसे प्राप्त करना है ना, उसकी तरफ जाता है, और इस पार्ट में देन दे स्टडी अबाउट द उपनिषद. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड उपनिषद. उपनिषद इज ऑल्सो नोन एज रहस्य और द सीक्रेट. क्योंकि ये हर किसी को नहीं बताया जाता. गुरु जो है वो सिर्फ अपने शिष्य को, जो उसके नजदीक या उसके पास बैठ के या गुरु को लगे कि हाँ ये योग्य शिष्य है, उसको ही देता था. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रहस्य ऑल्सो. सो उपनिषद मीनिंग उप मीन्स नियर बाय, नी मीन्स डियोटेडली, एंड शद मीन्स सिटिंग. So knowledge which is passing from the guru to the shishya or to the disciple, है ना, when the disciple is sitting close to the guru devotedly, तो श्रद्धा के साथ जो गुरु के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त करे वो है उपनिषद. So till now we have found around 200 Upanishad, and out of 200, 108, 108 Upanishad is known as authentic Upanishad, and out of 108, 12 Upanishad is known as very important. So these 12 important Upanishads are Katha Upanishad, Isha Upanishad, Kena Upanishad, Prashna Upanishad, Mundaka Upanishad, Mandukya Upanishad, Taittiriya Upanishad, Aitariya Upanishad, Chandogya Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad, Kaivalya Upanishad, and Shvetashvatara Upanishad. So these are 12 important Upanishad. Now, those who are very new to Upanishad, they must be thinking what is the given in the book Upanishad, because it is a very vast. Okay, so in the Upanishad, they have talked about the basic philosophy, like आप कहाँ से आए हैं, like you must have thinking ना in your life, आपने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि मैं आया कहाँ से हूँ, या मरने के बाद क्या होता है, ये जीव कौन है, ये जगत किसने बनाया होगा, ये प्रकृति किसने बनाई होगी. All that question when arise in your mind, the answer is given in the Upanishad only. So you will get all your answers regarding your life is given in the Upanishad. So some ideas is already in the Upanishad which you may find in your yoga path also. When you are learning yoga, you will find these ideas also. So this is basically come from the Upanishad, that the concept of Brahma and Atman. ब्रह्म क्या है और आत्मा क्या है, ये उपनिषद में बताया है. आइडियलिस्टिक मोनिज्म, लाइक ब्रह्म एक है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, आपने बहुत बार सुना होगा. इट हैज कम फ्रॉम द उपनिषद ओनली. एंड द कंसेप्ट ऑफ माया एंड अविद्या, व्हाट इज माया एंड व्हाट इज अविद्या, इज फाउंड इन द उपनिषद. पंच महाभूत, पंचकोश, परा एंड अपरा विद्या, एंड 4 states of self,
सेल्फ रियलाइजेशन, संसार क्या है, उपनिषदिक गॉड क्या है, ये सारे आइडियाज या कॉन्सेप्ट जो है वो उपनिषद में दिए गए हैं. Now here I have taken 3 Upanishad which is very important for the yoga purpose. So that is why I have chosen, and in these 3 Upanishad it is common that it is written in a very story form. So ये story form में है which you will like to understand. So that is why I have chosen these 3 Upanishad. So first Upanishad is Katha Upanishad. So Katha means literally the Katha means distress. Okay, it is also known as Katha or Katha. So Katha means we known as कि ये क्योंकि कथा फॉर्म में है, कहानी में है, तो you can know as Katha. But in Sanskrit it is written Katha. Katha means distress. And Katha or Katha is also is a name of sage. एक संत का नाम भी है, ऋषि का नाम भी है, and credited as the founder of a branch of the Krishna Yajurveda. And as well as the term for a female pupil or followers of Katha school of Yajurveda. जो फीमेल कथा उपनिषद को फॉलो करते हैं, यजुर्वेद को फॉलो करते हैं, उनको भी कथा कहा जाता है. So this Katha Upanishad is from somebody is writing on the screen. Please don't write. Yeah, please, you can, Sushma ji, go upwards. There is a bar. Then is annuity. Annuity is one option is given. You can erase yes, karo. Erase karo. Press here. And then what to do, sir? Pause. And Katha Upanishad is from Krishna Yajurveda, and it has 2 chapters, two adhyaya, and each is divided into 3 sections. So Katha Upanishad has 2 adhyaya and 3 sections, and each section is known as Vallis. And the Upanishad is the legendary story of a little boy Nachiketa and the son of sage Vajashrava who meets Yama. ये स्टोरी है नचिकेता, एक लड़का है, छोटा लड़का जिसका नाम है नचिकेता, और यम जो मृत्यु के देवता है यमराज, उनकी इन दोनों की स्टोरी या इन दोनों का डायलॉग जो है ये उपनिषद में दिया है. एंड यू विल लर्न अबाउट द नेचर ऑफ सोल, है ना, आत्मा क्या है, आत्मा कैसी होती है, एंड नॉलेज अबाउट द आत्मा, और मोक्ष क्या है, आत्मा को मोक्ष कैसे मिलता है, ये सबका नॉलेज आपको कथा उपनिषद में मिलेगा. And the Katha Upanishad, also called Kathak Upanishad, is one of the most popular and widely read Upanishad. And in this Upanishad, Nachiketa, young boy, and the dialogue between the god of the death, Yama. Here, Yama is a guru and Nachiketa is a Sishya. Okay? तो यम जो है वो नचिकेता को बहुत सारी ज्ञान की बातें बताते हैं, इसलिए उनको यहाँ पे गुरु माना गया है. Now in this story here, वाजश्रवा जो है वो नचिकेता के फादर हैं. उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ का आयोजन करने के बाद जो ब्राह्मण आए हुए थे उनको जो दक्षिणा में दान देते हैं, उसमें वाजश्रवा ने क्या किया कि उन्होंने वो सब चीजें दान में देने लगे जो उनके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी. जैसे कि पहले के जो ब्राह्मण थे, जो उनको गाय दान में दिया जाता था, ये ऐसी चीजें जो ब्राह्मणों को गृहस्थ के लिए काम आए, तो वो जो गाय दान में दे रहे थे, वो सारी जो गायें थी वो एकदम बूढ़ी हो चुकी थी कि वो दूध भी नहीं दे सकती, ना ही वो ठीक से खाना खा सकती हैं. तो वो सब देख के वाजश्रवा का ये सब देख के नचिकेता जो उनका पुत्र था, उसे लगा कि अगर पिताजी ने ये सब किया तो उनको जो पुण्य कर्म है यज्ञ का वो नहीं मिलेगा, बल्कि कहीं उनको ब्राह्मण कोई श्राप ना दे दे. इस डर से नचिकेता ने सोचा कि ऐसा कुछ करूं ताकि पिताजी जो है इस पाप से बच जाए. और उसने फिर जाके अपने पिताजी से कहा कि आप मुझे किसे दान में देंगे, क्योंकि दान में देने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है या जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है वो दान में दिया जाता है. तो मैं तो आपका पुत्र हूँ, और पुत्र होने के नाते मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, तो आप मुझे किसे दान में देंगे. तो पहले तो नचिकेता का जो ये क्वेश्चन था, वाजश्रवा उनके पिताजी ने बहुत इग्नोर किया, उसको जाने दिया. लेकिन बार बार पूछने के बाद वाजश्रवा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मैं तुझे यमराज को देता हूँ. और नचिकेता ने सोचा कि जरूर पिताजी ने कुछ सोच के ही ये कहा होगा, और शायद मेरी वजह से यमराज का भी कुछ भला हो रहा होगा, इसीलिए पिताजी के मुंह से ये वाक्य निकला है, तो मैं खुशी खुशी यमराज के पास चला जाऊंगा.
and therefore Nachiketa goes to the domain of the Lord of Death, Yama. इसलिए वो यमराज के पास जाते हैं. But unfortunately that day Yamaraj was not there in the house. So Nachiketa has to wait outside for 3 days. 3 दिन तक नचिकेता ने वहां पे इंतजार किया. और जब यमराज वापस आए तो उन्होंने देखा कि नचिकेता जो है वो बिल्कुल ब्राह्मण की तरह शांति से उसने मेरा इंतजार किया 3 दिन. तो और मैं उसे क्योंकि नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने नचिकेता से कहा कि तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो, क्योंकि तुमने 3 दिन तक भूख प्यास से है ना रहते हुए बिना कुछ खाए हुए तुमने मेरा इंतजार किया है, तो मैं तुमको 3 वरदान देता हूँ. सो नचिकेता ने फर्स्ट वरदान में मांगा. सो एट द फर्स्ट बोन नचिकेता आस्क्ड, व्हेन आई गो बैक माय फादर शुड नॉट बी एंग्री विथ मी. और नचिकेता यम ने उसको ये वरदान दे दिया कि नचिकेता जब आया था तब उसके पिताजी उससे बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने गुस्से में कहा था कि मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ. और नचिकेता नहीं चाहता था कि उसके पिताजी फिर से उससे गुस्सा हो या उसी तरह गुस्से में रहे, और उसने उनसे मांगा कि जब मैं वापस जाऊं तो वो मुझे अपने पुत्र की तरह प्रसन्नता से स्वीकार करें. और फिर यमराज ने उनको इसका दे दिया वरदान को, उनको वो दे दिया. और सेकेंड वरदान में नचिकेता ने मांगा कि स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग में जो जाता है वो अग्नि विद्या का पालन करता है, इसीलिए उसको ये स्वर्ग मिलता है. तो ये अग्नि विद्या किस तरह से प्राप्त हो सकती है वो नचिकेता ने पूछा. तो यमराज ने उसको डिटेल में बता दिया कि अग्नि विद्या किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं. Now here is the third important boon. So at the third boon Nachiketa asked Yama, what happens to man after death? Does he exist or not exist? अभी नचिकेता ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न किया कि मरने के बाद क्या होता है ना, वो जो जीव है वो रहता है या नहीं रहता. क्योंकि ये सब जो बातें हैं वो बहुत गूढ़ रहस्य है, हर किसी को नहीं पता चलनी चाहिए. इसलिए यमराज ने तो पहले नचिकेता को टालने की कोशिश की और नचिकेता से कहा कि ये क्वेश्चन के बदले या इस वरदान के बदले तुम मुझसे चाहे जो मांग लो. तुम्हें स्वर्ग चाहिए या पूरे संसार का सुख चाहिए, तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, पर तुम ये वरदान मत मांगो. और इसी के साथ यमराज नचिकेता का टेस्ट भी ले रहे थे कि क्या ये इस विद्या के योग्य है, क्या मैं इसको ये विद्या दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता. ये जानने के लिए भी यमराज ने उसको बहुत सारे लालच दिए कि मैं तुम्हें स्वर्ग देता हूँ, तुम्हें पूरे संसार का सुख देता हूँ. लेकिन फिर भी इतना सारे ऑफर्स करने के बाद भी नचिकेता जो है वो अपने ही शब्दों पे टिका रहा और उसने सारे वर्ल्डली और हेवनली एंजॉयमेंट थे उन सबको नकार दिया, उन सबको मना कर दिया. तब उसकी वजह से यमराज जो है वो नचिकेता के से बहुत संतुष्ट हुए कि ये एक बहुत ही है ना एक योग्य शिष्य है जिसे ये ज्ञान दिया जा सकता है. So Yama says there are 2 paths, श्रेयस the good and प्रेयस. आपकी लाइफ में जैसे 2 रास्ते आते हैं वैसे नचिकेता की लाइफ में 2 रास्ते आए थे. एक तो श्रेयस जो कि अच्छा है रास्ता, अच्छा पाथ है, एंड प्रेयस द प्लीजेंट जो सुखकारी है. एक सही रास्ता होता है और दूसरा रास्ता जो सुखकारी आपको अच्छा लगता है. ऐसे आपको 2 रास्ते मिलते हैं, वैसे नचिकेता को भी मिला. But you are intelligent and have selected the good over the pleasant. लेकिन तुमने जो सही रास्ता है उसको चुना, बल्कि न कि जो तुम्हें सुखकारी है वो रास्ता न चुन के जो सही रास्ता है तुमने उसे चुना. और इसीलिए यमराज जो है वो नचिकेता से बहुत प्रसन्न हुए और उसको ये विद्या देने के लिए राजी हो गए. So being pleased with Nachiketa's dispassion for empirical pleasure, Yama proceed to reveal to him the secrets of death. तो उन्होंने उसको क्या है रहस्य क्या है मृत्यु का वो बताना स्वीकार किया. And Yama teaching about death and the nature of the self from the rest of the Upanishad. बाकी उपनिषद में किस तरह से आपको आत्मा क्या है और आत्मा को लिबरेशन कैसे मिलता है और मृत्यु के बाद क्या होता है, इन सब के बारे में उन्होंने नचिकेता को बताया है. अब now today here important part which is for yoga purpose I have selected here. So definition of yoga you have read in the Yoga Sutra of Patanjali, in other texts in Bhagavad Gita. Here also definition of yoga is given. So here 2 places where in the Katha Upanishad where yoga is mentioned. So in the first where
it says like the Yamaraj is speaking about the self, says Adhyatma Yoga Adhigamena Devam Matva Dhiram Hasva Sokahu Jati. It means by concentrating the mind on the self and meditating on the deity residing there, the intelligent man gives up both joy and suffering. जब आप आपके अंदर जो देवता है या आपके हृदय में जो ब्रह्म है, जब आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हो, तब आपका जो दुख है वो उससे आपको छुटकारा मिल जाता है. So here Yama present Adhyatma Yoga, concentration on the self as the means to attain the perfection of equanimity. तो यहाँ पर भी यम ने बताया है कि अगर आपको सुप्रीम या आपको योग करना है तो उसके लिए concentration और meditation is the best path. Now Yama says, next. Okay. Now, in the second part where yoga is mentioned, here Yama is also directly defines yoga as M yogamati manete sthiram indriyan dharanam. कि मन की स्थिरता है ना, ये योग है. So that is called yoga when the sense organs and the mind are steadily restrained. जब आपकी इंद्रियां और मन जो है वो स्थिर हो जाते हैं, that is a yoga. Thus, yoga is defined in the Kathopanishad as controlling the sense organs and also as the means to attain the realization of the self. So it is quite very similar as the given in the Patanjali Yoga Sutra. Now here, nature of soul. What is Atma and how Atma is looking? It is Yama is describing to Nachiketa. कि आत्मा क्या है, वो कैसी है, उसके बारे में यमराज ने बताया है यहाँ पे. Okay, yes Sonal, please mute yourself. So here it is neither born nor does it die. आत्मा जो है ना तो पैदा होती है ना तो मरती है. It does not originate from anything, nothing originates from him. It is unborn, eternal, everlasting and omniscient. It does not die, and when the body die, जब शरीर मरता है तब आत्मा नहीं मरती. And it does not kill, nor is it killed. It is subtler than the subtle and greater than the great. Okay? सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान या बड़ा से बड़ा जो है वो आत्मा है. And it resides in the heart of every creature. वो हर जीव के अंदर है. And while sitting, it travels far away. While sleeping, it goes everywhere. So ये आत्मा के बारे में बताते हुए यमराज ने बताया है. And it is bodiless in the midst of body. It is permanent in the midst of impermanence. And the self cannot be known through merely studying about it or by the use of the intellect or by merely listening about it. It can be attained only by the grace of the self. अगर आपको स्वयं को जानना है तो आपको खुद ही प्रयास करना होगा, है ना. स्क्रिप्चर पढ़ के आप इसको नहीं जान सकते या सुन के नहीं जान सकते आत्मा क्या है. उसके लिए आपको मेडिटेशन ही करना होगा, सेल्फ रियलाइजेशन ही करना होगा. और उसको एक्सप्लेन करते समय, आत्मा को एक्सप्लेन करते समय यहाँ पर यम ने जो रथ होता है उसका उदाहरण दिया है. So Yama explained the relationship between the self and the body-mind complex using the analogy of the chariot. So thus self is the master of the chariot, body is the chariot, the intellect is the charioteer, the mind is the bridle, the sense organs are the horses, and the roads are the object of the sense organ. इस तरह से रथ के साथ जुड़ाव करते हुए यहाँ पे बताया है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और मन क्या है. Now what is the importance of self realization? So throughout the Kathopanishad we find various instances where Yama extol or praise about the self realization. So Yama ने सबसे ज्यादा इसी बात पे जोर दिया है कि सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा ही आप स्वयं को जान सकते हो या ब्रह्म को जान सकते हो. Among the two paths open to man, the intelligent one select the good path
and attains knowledge, whereas the unintelligent man choose the pleasant path and misses the real good or self realization. तो जो सही रास्ता है उसको चुनोगे तब आपको सेल्फ रियलाइजेशन मिलेगा. जो रास्ता आपके लिए सुखकारी है अगर आप उसे चुनोगे तो आप वो रास्ते से भटक जाओगे और आपको रियल जो आपकी लाइफ का गोल है वो नहीं मिलेगा. And why to get the self realization? What is the importance of self realization? So the self realized person becomes free from of both limited joy and sorrow. क्यों सेल्फ रियलाइजेशन करना है? ताकि आपके जो दुख है वो चले जाए और आपको जो अनंत आनंद है वो प्राप्त हो. He becomes free from the jaws of death and attains immorality. आपको immorality प्राप्त हो. He attains an emancipation, freedom, liberation. आपको liberation मिले and self realization grants eternal peace. और आपको संपूर्ण शांति मिले. That is why you should know or you should go in the path of self realization. Sir, आप एक बार सबको म्यूट कर दीजिए, then I will unmute myself. Now second I have taken Prashna Upanishad. So Prashna Upanishad is है ना, with the name only you can understand they are talking about, or in this Upanishad there must be very Prashna or questions. That is why the name. So in this Upanishad, the concept of prana and rayi is given, like how the creation has happened in this universe and what is pancha prana, and the 6 main question which is asked from the disciple to the guru. So इस प्रश्न इस उपनिषद में सबसे पहला जो प्रश्न है, जो 6 प्रश्न है वहां पे मैंने शॉर्ट में बताया है ना. What did life begins, है ना, ये जो जीव है वो उत्पन्न कहाँ से होता है. What is a living being? What is the nature of man and how is it so? And what establishes man? And what is meditation and why to meditate? And what is immortal in man? So ये सब क्वेश्चन है ना, शायद आपकी लाइफ में भी आए होंगे. तो इसका जो जवाब है वो प्रश्न उपनिषद में दिया हुआ है. Okay? So this Prashna Upanishad is, है ना, it has come from the Atharva Veda, ascribed to Pippalada Shakhas, Brahman section, and it is also called Shata Prashna Upanishad. इसमें 6 प्रश्न है, इसीलिए इसे Shata Prashna Upanishad भी कहा जाता है. And the Prashna Upanishad contains 6 Prashna question, and each is a chapter with a discussion of the answer. हर एक क्वेश्चन के लिए एक चैप्टर दिया है जिसमें शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु जो है वो आंसर दे रहे हैं. So here 3 अध्याय, 3 चैप्टर with a total of 6 कंडिकास. तो 3 अध्याय में ये जो 6 चैप्टर है वो डिवाइडेड है. And this Upanishad in the form of a series of dialogue between the Guru Pippalad and his 6 disciples. तो इसमें गुरु जो है वो गुरु पिप्पलाद है, ऋषि पिप्पलाद है और उनके 6 शिष्य हैं. और उनके जो 6 शिष्य हैं उनका नाम है काबंदिन कत्यायन, भार्गवा वैदर्भी, कौशल्य अश्वलायन और सौर्यानी गार्ग्य, साइबा सत्यकामा एंड सुकेशन भारद्वाज. सेज पिप्पलाद is credited with giving the answer. सेज पिप्पलाद इन 6 शिष्यों को उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न उपनिषद है. तो अभी 6 जो प्रश्न है उसके बारे में जानते हैं. सबसे पहले तो इसको जान लेते हैं एक स्टोरी फॉर्म में, ताकि आपको बाद में याद रहे कि एक बार जो 6 शिष्य थे वो गुरु के पास आए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमें इस जीव क्या है, जगत क्या है, इन सब के बारे में हमें जानना था, तो हमारे सवालों का जवाब आप दें. लेकिन उस समय जो गुरु थे वो इस तरह से किसी को भी जवाब नहीं दे देते थे. वो ये भी जानना चाहते थे कि जो शिष्य है वो उस विद्या के लिए योग्य है कि नहीं है. वो जानने के बाद ही वो उनको अपना ज्ञान देते थे. और इसीलिए पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा या आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको मेरे साथ मेरे आश्रम में 1 साल रहना होगा और जो मैं जैसा कहूंगा वैसा करना होगा. और उस 1 साल के बाद अगर मुझे ठीक लगा तो मैं आपको आंसर दूंगा. जितना मुझे ज्ञान है उसके हिसाब से मैं आपको आंसर करूंगा. और जब 1 साल पूरा हो गया तब वो शिष्य गुरु के पास आए और उन्होंने एक करके अपने क्वेश्चन को पूछना शुरू किया. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय काबंदी.
फ्रॉम व्हाट आर ऑल बीइंग्स बोर्न, है ना, सबकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, या जो ये यूनिवर्स में हम सब चीजें देखते हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है. So Pippalad answers by saying that Prajapati, being desirous of progeny, created a couple, Pran and Rai, the eater and the food. तो पिप्पलाद गुरु ने आंसर किया कि जो प्रजापति है ना, उन्होंने, उनके मन में आया कि मैं कुछ क्रिएट करूं, और उन्होंने उसी क्रिएशन में प्राण और रई एक कपल बनाए, और द ईटर और फूड बनाया, जो अन्न को खाता है, और जो फूड है वो बनाया. The sun is Pran and the moon. सुषमा जी आप अनम्यूट हो गए, अनम्यूट करो आप. हाँ सर. And here we can understand कि the प्रजापति, उन्होंने एक जो प्राण और रई बनाया है, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे पिप्पलाद गुरु जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है कि what is the meaning of प्राण and what is the meaning of rai in our this worldly creation. So the sun is prana and the moon is rai. तो उन्होंने प्राण और रई ऐसा दो चीज बताया पिप्पलाद ने कि प्रजापति ने बनाया प्राण और रई, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो हम आज दूसरे फॉर्म में देखते हैं. तो उसमें जो सन है वो प्राण है, और जो रई है वो मून है. प्राण एंड रई आर नॉट टू डिफरेंट एंटिटीज बट मेयरली टू एस्पेक्ट्स ऑफ प्रजापति. तो ये जो प्राण है, रई है, वो कोई अलग चीजें नहीं है, वो प्रजापति के अंदर से ही उत्पन्न हुई दो चीजें हैं और उन्हीं के ही पार्ट हैं. और अगर आप ये मान लो कि, है ना, फॉर द ईयर पिप्पलाद कंपेयर्स द ईयर टू प्रजापति. अगर हम मान ले कि एक जो वर्ष है वो प्रजापति ने एक वर्ष को किस तरह से डिफाइन किया है कि एक जो वर्ष होता है वो उत्तरायण और दक्षिणायन दो पार्ट में होता है. तो उसमें जो उत्तरायण इज प्राण एंड दक्षिणायन इज रई. And those who perform sacrifices and good action in expectation of result go to Somaloka, world of the moon, along Dakshinayan and come back. और जो लोग अपने डिजायर के लिए एक्शन करते हैं या किसी सकाम कर्म करते हैं, कुछ इच्छा से काम करते हैं, तो वो मरने के बाद दक्षिणायन के द्वारा मरने के बाद सोमलोक को जाते हैं, है ना, चंद्रलोक को जाते हैं और वापस धरती पे फिर से आ जाते हैं. However, the knower of the self travel along Uttarayan and attain Brahmaloka from where there is no return. और जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं और सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन के लिए या ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, वो मरने के बाद ब्रह्मलोक को जाते हैं और वापस नहीं आते, उनको मोक्ष मिल जाता है. और अगर हम एक मंथ को, एक महीने को प्राण और रई से कंपेयर करें, तो here Pippalad compares Prajapati to the month and Prana and Rai to the शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष. एक महीने में अगर दो पार्ट करेंगे तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, और अगर प्रजापति के साथ इसको कंपेयर करें, so here he says कि the rishi perform sacrifices in the शुक्ल पक्ष while the others do them during कृष्ण पक्ष. तो जो निष्काम कर्म करते हैं वो, ऐसे जो ऋषि हैं वो शुक्ल पक्ष में अपना काम करते हैं और बाकी जो काम है वो कृष्ण पक्ष में करते हैं. And the import of the statement in this, the rishis identify everything with the prana. Therefore, whatever sacrifices they do are considered to be done during Shukla Paksha, which symbolizes knowledge. तो जितने भी ज्ञान प्राप्त करने की चीजें हैं या ब्रह्म को प्राप्त करने की जो रिचुअल्स हैं वो सब शुक्ल पक्ष में करते हैं, और बाकी जो जिससे अपने डिजायर को फुलफिल किया जाए या सकाम जो कर्म है वो सब कृष्ण पक्ष में करते हैं. So those who identify Rai with everything are considered to be doing sacrifices in Krishna Paksha, which symbolizes ignorance. जिससे कि वो अज्ञानता की तरफ जाते हैं, और जो शुक्ल पक्ष में ज्ञान की तरफ जाते हैं उनको ज्ञान प्राप्त होता है. विजय सर, एक्सक्यूज मी, आपके उधर कुछ डिस्टर्बन्स आहे म्हणून ते तुमचं म्यूट करा विजय सर, म्हणजे डिस्टर्बन्स जाईल. माझा म्यूट आहे. हो का? सुषमा okay, मेरी तरफ से है. ओके सर, गिव मी 1 सेकंड, मे बी देयर इज सम वर्क इज गोइंग ऑन. आई विल अभी थोड़ा कम हुआ है. नाउ इफ वी टेक एट प्रजापति इन अ डे, अगर हम प्रजापति को एक दिन के साथ कंपेयर करें, सो द डे इज कंसीडर्ड टू बी प्रजापति. सो हियर प्राण इज द डे
टाइम, लाइक जो दिन का समय है वो प्राण है और जो रात्रि का समय है वो रई है। सो इस तरह से उन्होंने ये बताया है कि जो आपके अच्छे काम है वो दिन में करो, जिसमें नॉलेज मिलता है, और जो आपको नॉलेज नहीं मिलता या जो डिजायर के काम है जिससे आप सकाम कर्म करते हैं वो लोग रात्रि में करते हैं। Now in this Upanishad, the second question is they have asked about that what are the various deities or forces that sustain the human body and which among them is the chief। ये जो शरीर है उसमें कौन कौन से देवता विराजमान है हमारे शरीर में, और उसमें से सबसे मुख्य देवता कौन है, इसके बारे में भार्गव ने ऋषि पिप्पलाद को पूछा। सो उसका आंसर करते हुए पिप्पलाद ऋषि ने आंसर किया कि जो प्राण है वो सबसे इम्पोर्टेंट देवता है। तो इसमें उन्होंने एक स्टोरी बताई है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, कि सारे जो हमारे इंद्रियां हैं उनको देवता कहा गया, जैसे कर्णेंद्रियां हैं या फिर आपके सूंघने की जो इंद्रिय है, उन सब में एक बार सभी इंद्रियों ने कहा कि मैं सबसे मुख्य हूँ। तो उसमें से जो प्राण है, तो प्राण ने कहा कि मैं मुख्य हूँ, लेकिन सभी लोग को लगा कि मैं मुख्य हूँ। लेकिन जब शरीर से प्राण निकलने लगा तो उस प्राण के साथ ही बाकी इंद्रियां भी निकलने लगी। तब सभी इंद्रियों ने माना कि जो प्राण है वही सुप्रीम है, वही सबसे मुख्य है। तो ये स्टोरी भी आपको ये उपनिषद में है। तो इस तरह से पंच प्राण के बारे में ये सेकंड क्वेश्चन में पिप्पलाद ऋषि ने आंसर किया है और बताया है कि पंच प्राण में जो 5 में से प्राण जो है वो सबसे मुख्य है। Now the third question is by Kaushalya. How is prana born? Ma'am, I insist you that prana sedam vashe sarvam is रह गया है, प्लीज उसको थोड़ा सा पिछले वाली से। Oh, sorry. ये ना, okay, and the famous shloka Prashna Sedam Vase Sarvam is found in the second Prashna of this Upanishad। तो ये जो सेकंड प्रश्न उपनिषद में ये जो फेमस श्लोक है वो दिया गया है। Now the third question is, okay, कौशल्या ask about how is प्राण born। ये जो प्राण है वो उत्पन्न कैसे हुआ है और वो शरीर में एंटर कैसे करता है, उसके डिवीजन क्या है और वो शरीर को छोड़ता कैसे है, इन सब के बारे में क्वेश्चन किया। और पिप्पलाद आंसर द क्वेश्चन वन बाय वन। सो प्राण इज बोर्न आउट ऑफ द सेल्फ। जो प्राण है वो स्वयं से उत्पन्न होता है। एंड इट एंटर्स इनटू द बॉडी बिकॉज द एक्शंस ऑफ द माइंड, पास्ट कर्मा, is divided into 5 based on its function: प्राण, अपान, समान, व्यान एंड उदान। तो ये जो प्राण है वो स्वयं से उत्पन्न होता है, और जो हमारे जो ये पंच प्राण है, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, उनके जो कर्म है उसके हिसाब से वो कौन सा शरीर लेगा वो जीव, ये इन कर्मों के हिसाब से उन 5 प्राणों से जिस तरह के कर्म हुए रहेंगे उस तरह से उसको बॉडी मिलेगा, शरीर मिलेगा। Now here they have given, Pippalad has answered ki what are the location and function of that panch prana. The location and function of the panch prana are: prana issues out of the nose and mouth and reside in the eyes and ears. And jo apan hai, it reside in the lower aperture. The reproductive and excretory organs perform the function of excretion and ejection. And जो समान वायु है, it resides in between prana and apan, okay? Assimilates and distribute all that is eaten or drinking, okay? जो खाया या पिया जाता है उन सबको पूरे शरीर में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम है वो समान वायु का है। Now next is prana. So issues out of Now next vayu is or prana is vyana, and it resides in the nadis throughout the body. So here 108 या 101 जो मुख्य नाड़ी है, which have 100 branches and each which further have 72,000 subdivisions। ना आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो 72,000 नाड़ियां हैं, तो उन सभी नाड़ियों में जो सर्कुलेशन होता है वो काम है व्यान का। And fifth is udana. It takes the person to the punya loka or heaven if he has done good actions.
and Papaloka or hell if he has done bad actions. So bring him back to earth if he has done a mixture of good and bad actions. Okay, तो आपके ये जो पंच प्राण है, उन पंच प्राणों से आपने जिस तरह के कर्म किए रहेंगे उसी तरह का आपका शरीर मिलेगा और उसी तरह से आप उस लोक में जाएंगे. Now Pippalad further answered the question of Kaushalya that prana manifest in the external universe as follows. अगर हम प्राण को देखें, ये जो पंच प्राण है हमारे, उनको अगर हम एक्सटर्नल जो यूनिवर्स है उसके साथ कंपेयर करें, so प्राण is the sun, apan is the earth, and saman is the air between the sun and the earth, and vyan is the air which pervades everything, and udan is the fire. So now the fourth question is by Rishi Gargya. He talks about the organs which go to sleep in a person and the ones that remains awake, and the deity who experience dreams and happiness, and where everything gets merged during deep sleep. कि जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तब कौन है जो सोता है और कौन है जो जागता है और कौन है जो स्वप्न देखता है. So Pippalad answered that it is prana which keeps awake in the body during sleep, and it is the mind which experiences dreams, and during deep sleep everything gets merged in the self. और तीनों का आंसर यहाँ पे पिप्पलाद ऋषि ने दिया कि जो प्राण है वही जागृत रहता है और जो सोते समय इट इज द माइंड जो एक्सपीरियंस करता है ड्रीम को, और बाकी सभी चीजें खुद में मर्ज हो जाती है. इसीलिए आप देखते हो कि कभी कभी जो आपके डीप स्लीप स्टेट है उसको सुषुप्ति अवस्था के साथ कंपेयर किया जाता है. Now the fifth question is, Satyakama asked about the fifth question. The world which is attained by one who meditates on Om. And Pippalad says that one who meditates on Akar attains the human birth. कि ओमकार जो है उसके जो उपासना है वो करने पे क्या होता है और उसको करने के बाद क्या प्राप्त होगा. So Pippalad Rishi here answers that जो ओम मेडिटेशन या जो ओमकार है, अकार उकार मकार से बना हुआ जो ओमकार है, उसमें से जो अकार को रिसाइट करेगा या उसकी साधना करेगा उसको ह्यूमन बर्थ मिलेगा. एंड हु मेडिटेट्स ऑन द उकार अटेन द सोमलोक, चंद्रलोक मिलेगा. एंड हु मेडिटेट ऑन ओमकार एज ए होल अटेन्स एनलाइटमेंट एंड रियलाइज द सुप्रीम ब्रह्मन. देयरफॉर व्हेन वन मेडिटेट्स ऑन ओमकार एज ए होल ही अटेन्स मोक्ष. तो अकार उकार में से ओमकार को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है, और जो ओमकार के ऊपर मेडिटेशन करेगा या ओम मेडिटेशन करेगा that will get attain moksha or liberation. Now the last question is asked by Sukesha, and he asked about the Shodak Kala Purusha, कि ये शोडक कला पुरुष कौन है और कहाँ रहता है ये. So Pippalad answered that the Purush with 16 limbs reside in the body, and the 16 limbs originate from the Purusha in the following. तो ये जो 16 शोडक कला पुरुष है ये पुरुष के अंदर ही रहता है, और उन्होंने बताया कि ये शरीर में ही है, और उसका ऑर्डर उन्होंने बताया प्राण, श्रद्धा, काम, वायु, ज्योति, अपह, पृथ्वी, इंद्रिय, मनस, अन्नम, वीर्यम, तपस, मंत्र, कर्म, लोक और नाम. ये जो शोडक कला है ये पुरुष के अंदर ही है. एंड पिप्पलाद कंक्लूड्स बाय सेइंग दैट all these 16 limbs merge into the Purusha just like different rivers merge into the sea. तो ये शोडक कला जो है ये शरीर के अंदर ही है, जो आपके जैसे पैर का अंगूठा है, एंकल है, नी है, वहां पे एक एक लोकेशन उसका बताया है इस नाम के द्वारा. और जब शरीर का अंत आता है तब ये शोडक कला पुरुष भी उसी में मर्ज हो जाता है आत्मा के साथ या उस इंद्रिय के साथ. So now third Upanishad is Taittiriya Upanishad. Okay. And in Taittiriya Upanishad, the concept of Pancha Kosha and summary of the all three Valli or Siksha Valli, Ananda Valli and Bhrigu Valli is given. So Taittiriya Upanishad is also
This Upanishad belongs to the Krishna Yajurveda, and it starts with Shahana Bhavatu, that prayer, and the Upanishad also starts with the Shanti Mantra, Sano Mitra. And it has 3 chapters, and each chapter is known as Valli, Siksha Valli, Brahmananda Valli, and 3rd chapter is Bhrigu Valli. And it is famous for the concept of Panchakosha, the division of the human personality into 5 sheaths. So in yoga, you must have read about the Panchakosha, which is a very important theory. And the Brahmananda Valli also speaks of different levels of bliss enjoyed by being at a different level. तो हर एक लेवल पे आपको किस तरह का ब्लिस मिलता है वो ब्रह्मानंद वल्ली में अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है. Now the concept of Panchakosha is presented in the Brahmanand Valli and Bhrigu Valli. So ये दोनों सेक्शन में पंचकोश के बारे में बताया है. And according to the Panchakosha theory, the human personality is made up of 5 sheaths. First sheath is Annamaya Kosha, the sheath of food or matter, and it is the physical body. It is also called as Sthula Sharir, the gross body. तो outer sheath. अगर आपने पंचकोश का फिगर डायग्राम देखा होगा तो उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं that outer sheath is the अन्नमय कोश और स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी. एंड नेक्स्ट बॉडी, जितना बड़ा अन्नमय शरीर है बिल्कुल उतना ही बड़ा प्राणमय कोश या प्राणमय शरीर है और उसमें अन्नमय कोश है. So second is pranamay kosh, the sheath of vital life force made up of the 5-fold division of prana, and it gives life to the annamay kosh. तो जितना बड़ा आपका अन्नमय कोश है उतना ही बड़ा आपका प्राणमय कोश है जो अन्नमय कोश के अंदर है. And next is manomay kosh, the sheath of the mind consulted by the ज्ञानेंद्रिय and manas. It is the cognitive faculty. तो आपके जो प्राण मन जो है उनका जो कनेक्शन है आपकी बुद्धि का, मन का, बॉडी के साथ, उनको कनेक्ट करने का काम जो है वो मनोमय कोश का है. और दिस इज द 3rd शीथ. और इससे ही जो मनोमय कोश है वो भी उतना ही बड़ा है जितना कि आपका प्राणमय कोश है, और जो आपका अन्नमय शरीर है उसका आकार भी उतना ही बड़ा है. Now, 4th is Vijnanamay Kosh, the sheath of the buddhi or intellect, and it is responsible for knowledge, your will, doership, decision making, and discrimination. And the Pranamay, Manomay, and Vijnanamay Kosh together are called the Sukshma Sharir or subtle body. तो अन्नमय कोश को छोड़ के बाकी जो आपके प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश है वो आपके सटल बॉडी का पार्ट है, सूक्ष्म शरीर का पार्ट है. और लास्ट इज आनंदमय कोश, द शीथ ऑफ ब्लिस. दिस रिफर टू द ब्लिस दैट इज एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग डीप स्लीप स्टेट, and it is indescribable and is said to be the bliss of the Atman. Even the Anandamay Kosh is not the Atman, but it is the closest sheath to the Atman. So the last part of this personality is Anandamay Kosh. So Anandamay Kosh is the deepest part, you can say, and it is very close to Atma. That is why it is known as that you can get the Brahman through when you reach to the Anandamay Kosh. And on this कोश you cannot describe, इसको वर्णन नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. and it is the same state which you get during the deep sleep state. And at the end I will so this in the Siksha Valli. Now next is Siksha Valli. So in the Siksha Valli it is the Vedang which deals with the science of pronunciation. तो जो शिक्षा है ये जो आपके वेदांग है, आपने जो वेद के 6 अंग पढ़े थे उसमें से एक है ना. तो this therefore Siksha Valli begins by setting forth the different components of the Vedic chanting, कि आपके जो वेद में जो चैंटिंग है ना, जो छंद है या श्लोक है उसको चैंट कैसे करना है, उसके जो वर्ण है, अल्फाबेट्स है, स्वर कैसे देना है, उसमें मात्रा कितनी लगानी है, उसमें बल स्ट्रेस कितना देना है, समा कितना है उसमें, और संतान कैसा है, जो लेटर्स को ज्वाइन कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको शिक्षा वल्ली में मिलेगी कि आप जो वेद के जो छंद है, मंत्र है, उनको कैसे पढ़ना है, वो सब शिक्षा वल्ली में दिया है. एंड इट ऑल्सो कंटेन्स 5 काइंड्स ऑफ मेडिटेशन अबाउट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एवरीथिंग. इसमें और 5 प्रकार के ध्यान के बारे में भी बताया है. Now the summary of Brahmananda Valli.
the next section. So the Brahmanandavalli begins with the declaration Brahma Vidopni Param. The knowledge of Brahma attains the highest. जो ब्रह्म को है ना जानता है उसी को the highest goal जो है वो प्राप्त होता है. It then defines Brahman as Satyam Jnanam Antam Brahman. Brahma is truth, knowledge and infinite. जो ब्रह्म है वो अनंत है और सत्य है और उसी के द्वारा नॉलेज के द्वारा वो प्राप्त किया जा सकता है और वही सुप्रीम नॉलेज है. दिस इज कंसिडर्ड टू बी द स्वरूप लक्षण. और ब्रह्म के बारे में ये उसके स्वरूप के बारे में थोड़ा सा बताया है. एंड द ब्रह्मानंदवल्ली नेक्स्ट प्रोसीड टू डिस्क्राइब द पंचकोशा 5 teeth of human personality. And this Brahmanandvalli is famous for Anand Mimamsa, the evolution of Anand. आनंद किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन ब्रह्मानंदवल्ली में भी दिया है. The Upanishad provides an estimate of different levels of bliss, starting from human bliss and ending in हिरण्यगर्भ bliss. तो इसमें आनंद क्या है और आनंद का जो प्रकार है, जैसे आपका जो एक सुख है, ह्यूमन का एक सुख कितने के बराबर है, या आपको जब पूरे संसार का सुख मिले तो वो किसके बराबर है. संसार में जैसे 100 सुख मिलेंगे तब वो एक स्वर्ग के बराबर होगा. इस तरह से कंपेयर करते हुए उन्होंने सुख का जो वर्णन है या जो आपका आनंद है जो आपको मिलता है उसका वर्णन करते हुए बताया है. However, the import of the Anand Mimamsa is that the highest level of bliss that can be enjoyed, which the bliss of Hiranyagarbha can be enjoyed by a man who is well versed in the Vedas and devoid of desires. जिसने वेद को पढ़ा है और उसको फॉलो करता है ना, लेकिन उसको अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं बल्कि वो उस आनंद परम आनंद को प्राप्त करने के लिए करता है, उसको ही ये आनंद प्राप्त होता है, उसको ही ब्रह्म प्राप्त होता है. Okay. Now the last summary of that Bhrigu. The Bhrigu begins with Bhrigu asking his father Varuna, teach me about Brahma. अभी जो स्टोरी है ये उपनिषद में ये यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो भृगु है ना, उन्होंने उनके जो फादर है वरुण उनसे जानना चाहा कि ये ब्रह्म क्या है और ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है. तो वरुण जो थे उनको तो मालूम था कि ब्रह्म को कैसे प्राप्त करना है, लेकिन उनका पुत्र है सिर्फ इसलिए उसको ऐसे ही बता दे उनको वो ठीक नहीं लगा. उन्होंने सोचा कि ये खुद जाके खुद तपस्या करे या खुद उस चीज को ढूंढे और जाने, तभी उसको ये जो सही ज्ञान है वो प्राप्त होगा और वो उसको डिजर्व करेगा. इसलिए उन्होंने वरुण ने बताया कि वरुण रिप्लाइज बाय सेइंग दैट फ्रॉम विच ऑल बिगिंस ओरिजिनेट, in which all beings exist and into which all beings merge, that is ब्रह्म. जहां से सब उत्पन्न हुआ है और जिसमें सब मिल जाता है वही ब्रह्म है. वरुण ने सिर्फ इतना बताया और भृगु से कहा कि तुम जाओ मेडिटेशन करो और इस चीज को आप खुद ही प्राप्त करो कि ब्रह्म क्या है या खुद जानो कि ब्रह्म क्या है. Then Bhrigu meditate on this and comes to the conclusion that annam, food is ब्रह्म. और जब भृगु ने मेडिटेट किया तब उसने जाना कि ये जो अन्न है, जो अन्नमय शरीर है या जो अन्न है वही ब्रह्म है, क्योंकि सारी चीजें जब हम इसी को खाते हैं इसी से हमारा शरीर बनता है और जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो वापस वो मिट्टी में ही मिल जाता है और उसी मिट्टी से अन्न बनता है. तो इस तरह से भृगु ने कंक्लूजन निकाला कि जो अन्न है वही ब्रह्म है. वरुण आस्क्ड हिम टू मेडिटेट एंड नो मोर अबाउट ब्रह्म. और जब भृगु जो है वो अपने वरुण अपने पिताजी के पास आए और उन्होंने बताया कि मैंने जान लिया है कि ब्रह्म क्या है, और उन्होंने बताया कि जो अन्न है वही ब्रह्म है. लेकिन वरुण जानते थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहे. तो भृगु ने समझ लिया कि जरूर जो मेरा आंसर है वो या तो गलत है, सही नहीं है, और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसको जानने के लिए कुछ भी करूंगा. तो फिर से वरुण ने कहा कि फिर से जाके आप मेडिटेट करो और जानो कि ब्रह्म क्या है. और इस तरह से कई बार वरुण ने भृगु को मेडिटेट करने के लिए भेजा. तो सेकेंड टाइम भृगु ने जाना कि जो प्राण है वो ब्रह्म है. फिर बाद में उन्होंने सोचा कि जो मन है वही प्राण और शरीर को कंट्रोल करता है, इसलिए वो ब्रह्म है. और बाद में उनको लगा ये जो बुद्धि है, विज्ञान है या इंटेलेक्ट है वही बाकी सबको कंट्रोल करता है, इसलिए वो ब्रह्म है. लेकिन लास्ट में जब उन्हें आनंद मिल गया या जो ब्रह्म मिल गया, तब उन्होंने जाना कि
ब्रह्म क्या है या वो जो हाईएस्ट जो ब्लिस था उनको मिला, तब उन्होंने एक्चुअली जाना कि एक्चुअल ब्रह्म क्या है। सो ये सब करने के बाद जब वो हर बार आते थे और वरुण के पास पूछते थे, और वरुण जो है वो हर बार उनको यही आंसर करते थे कि तुम और मेडिटेट करो और कॉन्सेंट्रेट करो। एंड देन फाइनली भृगु कम्स टू द रियलाइजेशन दैट आनंद ब्लिस इज ब्रह्म, और भृगु ने अंत में जाना कि जो आनंद है, जो ब्लिस है, वही ब्रह्म है। The import of the Bhriguval is that though all the four sheath, Annamaya, Pranamaya, Manomaya and Vijnanamaya Kosh are manifestation of Brahman, but Anandamaya Kosh is the one closest to Brahman. है ना, कि बाकी जो कोश हैं आनंद, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश, ये सभी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन ब्रह्म के जो सबसे नजदीक का कोश है वो है आनंदमय कोश, क्योंकि जब वो कोश में आप रहते हो तभी आप ब्रह्म के सबसे नजदीक होते हो और आप ब्रह्म को रियलाइज कर सकते हो। एंड आई विल एंड फ्रॉम दिस आनंद मीमांसा दैट he understood that Bhrigu understood that bliss is Brahma, आनंद ही ब्रह्म है, because the bliss from these creatures are verily born, having been born by bliss they live, and having departed into bliss again they enter। ये आनंद से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है और अंत में आनंद से ही लोग जीते हैं और अंत में आनंद में ही मर्ज हो जाते हैं। सो दिस इज द आनंद मीमांसा। So this is all about today's Upanishad part. Thank you so much for listening me.